Welcome students to this interesting video on solar system brought to you by Prince Convent School. Now, solar system, or in other words the sun, the moon, the stars, the planets, these things have always fascinated everyone. आप सब भी सोचते होंगे, आप सबके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे about sun, about stars, about moon. So in today's video, we will try and answer few of these questions. तो होपफुली इस वीडियो देखने के बाद आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम? दिन में अगर आप आसमान में देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? So during daytime, we can only see sun in the sky. केवल सूरज ही दिखता है दिन में, चांद तारे ये कुछ भी नहीं दिखते। तो कभी आपने सोचा है कि वेयर डज ऑल दिस स्टार्स एंड मून गो अवे ड्यूरिंग द डे टाइम? कहां चले जाते हैं ये? तो ये स्टार्स और मून कहीं नहीं जाते हैं, वो स्काई में ही रहते हैं। बट क्योंकि सन की लाइट इज सो ब्राइट that you cannot see other stars and planets in it. ठीक है? Sun's light is so bright that you cannot see other stars and planets during daytime. कभी आप देखना कि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा लाइट फोकस करते हो, बहुत ब्राइट लाइट डालते हो, तो उस चीज की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और सन की लाइट भी बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो डे टाइम में उस लाइट के अंदर बाकी स्टार्स, प्लैनेट्स और मून दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है? तो कहीं जाते नहीं है, पर सन की लाइट के कारण वो विजिबल नहीं होते हैं। बट ड्यूरिंग नाइट व्हेन द सनलाइट इज नॉट देयर, यू कैन इजीली सी मून, स्टार्स एंड अ फ्यू प्लैनेट। जब रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है, तब आसानी से आप चांद, तारे और कुछ प्लैनेट्स भी देख पाते हो, राइट? So all these stars, sun, moon and the planets that are present in the sky are known as heavenly bodies. ठीक है? So what are heavenly bodies? Stars, sun, moon, planets that are present in the sky are known as heavenly bodies. और इनको हम celestial bodies भी बोलते हैं। Celestial bodies. Okay? So heavenly bodies and celestial bodies are those bodies which are present in sky, and these include stars, sun, moon, planets, and there are other bodies like asteroids, comets, etc., which you will learn in higher classes. ठीक है? तो ये सब आपकी heavenly bodies है। Sun, star, moon, planets, asteroids, comets, etc. So now let's look at what are planets. So heavenly bodies which revolve around the sun are known as planets. वो heavenly body जो sun के चारों तरफ घूमती हैं उसको हम planets बोलते हैं। Look at this animation below. तो येलो कलर का आप सन देख रहे हो और उसके चारों तरफ से ब्लैक कलर का प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। So clear है सबको? What are planets? These are heavenly bodies which revolve around the sun. Students, now we will take a look at what solar system is all about. So the sun and the planets which move around the sun form solar system. यानी सूरज और सूरज के आसपास जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो जो हमारा सन है दैट इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है? और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। देख सकते हो प्लैनेट्स?
मरकुरी, वीनस, अर्थ, सो एंड सो फोर्थ। सबसे पहले मरकुरी और सबसे आखिरी में नेपच्यून। So this is solar system, sun and the 8 planets which move around the sun, right? यही हमने देखा था अभी। The sun and the 8 planets that move around the sun forms the solar system. सूरज के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट घूमते हैं वो सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। So what are these 8 planets which form the solar system? Let's look at this diagram very carefully. ध्यान से इस डायग्राम को देखो। ये सन है and these are the 8 planets which are moving around the sun. So starting from the nearest planet जो सन के सबसे पास में है, so these 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are the 8 planets which form the solar system. Again, take a look. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury is the closest to Earth and Neptune is farthest away from Earth. मरकुरी सबसे पास है और नेपच्यून सबसे दूर है सूरज के। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा जुपिटर है। और सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है सैटर्न और इसके चारों तरफ एक रिंग भी रहती है। नाउ इफ यू लुक एट द फिगर यू विल सी अनदर हेवनली बॉडी मार्क जिसका नाम है प्लूटो। अब प्लूटो को पहले साइंटिस्ट एक प्लैनेट मानते थे बट उसका साइज इतना स्मॉल है कि नाउ प्लूटो को प्लैनेट नहीं काउंट करते हैं। प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट। तो केवल 8 प्लैनेट मानते हैं, इसलिए हम प्लूटो को कट कर देंगे एंड वी विल हैव ओनली 8 प्लैनेट्स। ठीक है, ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। नियरेस्ट टू सन इज मरकुरी, इसके कारण सबसे गर्म भी है। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज अर्थ, जहां पर हम लोग रहते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट और मरकुरी स्मॉलेस्ट। अब अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो उसमें बाकी सारे प्लैनेट्स आई हैव रिटन इन ब्लैक, बट अर्थ को मैंने ब्लू में लिखा है और मार्स को रेड में। तो रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो अर्थ है, अर्थ हैज गॉट वाटर ऑन इट, तो अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्काई, तो इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज इट हैज गॉट वाटर ऑन इट। और मार्स में पूरे समय स्टॉर्म्स चलते हैं, तूफान आते हैं, जिससे वहां की मिट्टी चारों तरफ प्लैनेट को कवर करके रखती है, विच इज रेड इन कलर। सो दैट्स व्हाई मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ठीक है, तो क्लियर है आपको? ऑल द 8 प्लैनेट्स, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, largest planet, closest planet and furthest planet. Now, why is sun so important? सन इतना जरूरी क्यों है? सूरज इतना जरूरी क्यों है? तो इसके पीछे के रीजंस नाउ वी विल स्टडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सन सिग्निफिकेंस, सन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाइफ ऑन अर्थ विच इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स एटसेट्रा is possible because of heat received from the sun. जो सूरज से हमें गर्मी मिलती है उसके कारण ही अर्थ के ऊपर लाइफ है, उसके कारण ही अर्थ के ऊपर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मैं हूं, आप हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। अगर सन की हीट नहीं होती तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। Why?
बिकॉज without the heat of sun the earth will become too cold and all living beings will die. सूरज की गर्मी के बिना अर्थ इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि कोई भी लिविंग बीइंग उस पर सरवाइव नहीं कर पाएगा. सबकी डेथ हो जाएगी, सब डाई हो जाएंगे, चाहे वो फिर प्लांट्स हो कि एनिमल्स हो कि ह्यूमन बीइंग्स हो कि इंसेक्ट्स हो. ठीक है. So sun is important because life on earth is possible because of heat received from the sun. Without the heat of sun, the earth will become too cold and all living beings will die. और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन सन का, दूसरी इंपॉर्टेंस सन की, कि सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. और आप सबको पता है एनर्जी के बिना कुछ भी काम नहीं होता है. आपके घर में फैन चलता है, आपके घर में लाइट चलती है, कूलर चलते हैं, एसी चलता है, फ्रिज चल रहा है, सब किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत तरीके हैं. कोयल से जनरेट होती है, वाटर से जनरेट होती है, विंड से जनरेट होती है, बट इंक्रीजिंगली सन से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं. ओके. नाउ द एनर्जी obtained फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. ठीक है. एनर्जी obtained फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सोलर कुकर एंड गीजर यूजेस सोलर एनर्जी. ठीक है. तो सन की हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जिससे हमारे घरों में लाइट, फैन, फ्रिज एटसेट्रा चलते हैं. सोलर कुकर, कुकर जिसमें खाना बनता है. एक कुकर होता है जो आप गैस पे रख कर खाना बनाते हो. दूसरा कुकर ऐसा भी आता है जिसको आप धूप में रख दो तो उसमें खाना पक जाएगा. दैट इज नोन एज सोलर कुकर. सिमिलरली गीजर, दिस यूजेस सोलर एनर्जी. और सोलर एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका एडवांटेज क्या है? इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन. इट डज नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. इससे धुआं नहीं निकलता है, तो इससे एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता है, एटमॉस्फेयर पोल्यूट नहीं होता है. इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. आपने देखा गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल या डीजल से. जब गाड़ी पेट्रोल डीजल से चलती हैं तो उसमें से धुआं निकलता है जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं. बट सूरज की रोशनी से या सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है. नाउ वी विल लुक एट सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सो प्लैनेट्स क्या थे? प्लैनेट्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट? नाउ satellites are heavenly bodies which revolve around the planets. तो जो हेवनली बॉडी प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटती है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. अब जैसे देखो, ये सन है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटता है. ये ब्लू लाइन में अर्थ का चक्कर दिखा रहे हैं, तो अर्थ इज अ प्लैनेट. और ये छोटा सा मून देखो यहाँ पे, और मून किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. तो मून इज अ सैटेलाइट. ठीक है. सो हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. अर्थ के पास तो एक ही सैटेलाइट है, बट जुपिटर और सैटर्न ऐसे प्लैनेट हैं जिसके पास मोर देन वन सैटेलाइट आर देयर, यानी उनके पास एक से ज्यादा मून है. ओके. सो क्लियर है? हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. एंड मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. और ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिसके पास एक से ज्यादा मून है. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, विच इज बिगर, द सन और द मून? जब आप देखते होगे स्काई में तो आपको लगता है कि दोनों बराबर ही हैं, बट रिमेंबर द सन इज मेनी मेनी टाइम्स बिगर देन द मून. सन मून से बहुत 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 ज्यादा
बड़ा है। ठीक है, तो अगर सन मून से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है तो क्यों हमें देखने पर इट अपीयर्स ऑफ द सेम साइज? Why does it appear of the same size? तो चिल्ड्रन इसका आंसर है द सन इज फार फार अवे फ्रॉम द अर्थ एज कंपेयर टू मून। जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से वो मून के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है। और जब हम किसी भी चीज को बहुत दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है, राइट? सो देयरफॉर सन अपीयर्स स्मॉल। समझ में आ गया? द सन इज फार फार अवे फ्रॉम द अर्थ एज कंपेयर टू मून, हेंस इट अपीयर्स स्मॉल। ओके, तो आई होप, so students, I hope that after watching this video, lot of your questions about heavenly bodies or celestial bodies like sun, the moon, the earth, the stars would have been answered. अब आपको पता चल गया होगा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं और सन इतना छोटा क्यों दिखता है। So, I hope you enjoyed watching this video. You found it exciting. Keep watching videos being put up by Prince Convent School. So goodbye for now, and we will be back soon with new lectures. Thank you for watching.